Good morning, student. Today I welcome to the class 9, chapter 2 of Moment book, The Adventure of Toto. It is understood by the title that some of the creature is doing such kind of adventure. So, have you ever had a baby monkey as a pet? क्या हमने कभी बेबी मंकी को एज अ पेट रखा है क्या? टोटो इज़ अ बेबी मंकी, सो टोटो इज़ अ नेम ऑफ अ बेबी मंकी ओवर हियर. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस और डोकलर, यानी वो बदमाश है या सिंपल सा पर्सन है. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपी. तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में मंकी को परचेज किया. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग trough, and the monkey looked so out of the place there that the grandfather decided he could add the little fellow to his private zoo. टोंगा ड्राइवर जो है अपने टोंगे के में हमेशा रेड मंकी को, रेड फेस मंकी को बांध के रखता था, और ग्रैंडफादर ने सोचा कि इस मंकी को यहाँ पे रखना अच्छा नहीं है, वो खुद अपने प्राइवेट जू में उस मंकी को लेकर आ जाएंगे. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो वॉज अ pretty monkey. His bright eyes sparkled with a mischievous beneath deep set eyebrows. उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक थी, स्पार्कलिंग सी आइज थी, एंड वो एक मिस्चीवियस सा आंखों से दिख रहा था कि थोड़ा सा नोटेरस टाइप है. एंड his teeth which were a purely white. उसके दांत जो हैं purely white थे. were very often displayed in a smile. Obviously you must be seeing that monkey जो हमेशा हंसता रहता था, तो उसके दांत तो जो हमेशा चमकते ही रहते थे. That frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. और Anglo-Indian ladies को mostly डराने में काम आता था. But his hands looked dried up as though they had been picked in the sun for many years. आपने देखा होगा मंकीज़ के जो हैंड्स होते हैं एकदम ब्लैक कलर के, ड्राई कलर के होते हैं. ऐसा लगता है कि उसके जो हाथ है वो धूप में सुखाए गए हैं. पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. येट द फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड. उसकी जो फिंगर्स थी बहुत पतली सी और बहुत क्विक सी थी. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. एंड मंकी की जो टेल है वो उसके गुड लुक में एक एडिशन था. तो अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ द टोटो, व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ द मंकी, यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल अबाउट दैट. ही वाज अ स्पार्कलिंग टीथ थे, टेल थी, ब्राइट आइज थी, मिस्चीवियस था. ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर भी ये मानते थे कि कुछ गुड लुक में एक ऐड. ऑल्सो सर्व एट एज थर्ड हैंड. और मंकी का टेल जो है वो एज अ थर्ड हैंड की तरह काम करता था. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and any delicacy that might be out reach of these hands. आपने देखा होगा मंकी को एक ब्रांच से, from moving from one branch to another, it helped an addition to it. Grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or the animal. Grandmother जो है हमेशा गुस्सा करती थी जब भी grandfather कुछ नया पेट एनिमल्स जू में लाते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept as a secret, and grandfather from that day decided that the monkey's presence would be kept as a secret until she saw it, particularly in a good mood. Until the grandmother is in a good mood, the monkey will be kept as a secret. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. So grandfather decided to keep the monkey in the क्लोजेस्ट ओपनिंग, यानी अलमीरा में बेडरूम की वॉल के अंदर रखने के लिए डिसाइड किया. वेयर he was tied securely, and grandfather tied the monkey very safely. So we thought to peg a fasten into the wall. एक peg जो होता है ना, एक तरह से hook, one kind of hook was put into the wall and the monkey was tied into it. A few hours later, when grandfather came and back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. Few hours later, when grandfather came into the room and saw the papers were all teared up, papers जो है सारे tear up हो गए और सब कुछ जो है टूटा फूटा सा नज़र आ रहा था. The peg in the wall had been ripped from his socket. जो peg था उसको भी निकाल के फेंक दिया गया. And my school blazer, उसका उनके जो grandfather का school blazer था, which had been hanging there, was in shred. और जो school blazer जो वहाँ पे लटका हुआ था उसको भी shred यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए. I wondered what grandmother would say, but
Grandmother did not worry. Grandfather did not worry. He seemed pleased with the Toto's परफॉर्मेंस, बट ग्रैंडफादर की कोई टेंशन नहीं हुई और ग्रैंडफादर इस चीज़ को, मंकी की बदमाशी को देख के बहुत हैप्पी हुए. ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव बीन ट्राइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप. और उन्होंने सोचा कि जो ब्लेजर के पीसेस हैं उसको एक रोप के अंदर बांध दिया जाए. एंड मेड इट एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो के पास में छुपा दिया जाए. His presence in the house still a secret, but the monkey's presence was still a secret. Monkey अभी भी छुपा हुआ था. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, and Toto was transferred to a servant quarter with a number of grandfather's pet lived socially together. और grandfather के जो zoo में जो animals थे वो socially रह रहे थे, एक दूसरे से bonding सा अच्छे से रहते थे. कौन कौन से animals थे उनके पास में? A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at the night. मंकी रात में किसी को भी सोने नहीं देता था, कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहता था. So grandfather, who had to leave for Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Now grandfather was going to Dehradun next morning, so he decided that the monkey should be taken with him. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. आई मीन्स कौन है? आप उनकी सर्वेंट है जो ग्रैंडफादर के साथ में कंपनी नहीं कर पाए उस ट्रिप को. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बड़ा सा बैग जो है वो टोटो के लिए बनवाया गया. दिस विथ वॉट सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, एंड बैग के अंदर कुछ स्ट्रॉ जो होती है ना, झाड़ फूड वगैरह, वो रख दी गई. बिकॉज हिज न्यू अबोर्ड, बिकॉज ये एक नया घर था मंकी के लिए. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was so strong for him to bite his way through. टोटो अंदर हाथ में हिला नहीं पाता था, और वो बैग जो था, कैनवस जो था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो उसको काट भी नहीं सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor, occasionally jump into the air. या तो बैग के साथ ही जंप करेगा या बैग जो है रोल करेगा अगर ज़मीन पे, तभी मूव कर पाएगा. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers, the Dehradun railway platform. और रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक नया एडवेंचर हो गया, रोल करता हुआ बैग या जंप करता हुआ बैग. टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज द सहारनपुर. सहारनपुर तक आ गया, लेकिन टोटो अभी भी बैग के अंदर है. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे ट्रायल, टोटोली सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. जब ग्रैंडफादर अपना टिकट वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, तभी टोटो जो है बैग में से बाहर निकल के एक ग्रिन सा, एक डरावना सा क्लिक देता है टिकट कलेक्टर को. The poor man was taken aback, but with a great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." और ग्रैंडफादर को टिकट कलेक्टर ने बोला, क्या तुम्हारे पास में एक डॉग है? यू विल हैव टू पे इट अकॉर्डिंगली. एंड टिकट कलेक्टर ने बोला कि तुम्हें उसका पे करना पड़ेगा. इन वेन, गुस्से में, इन ग्रैंडफादर टुक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ dog or even the quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over his as a fare. और ग्रैंडफादर ने मंकी को बाहर निकाला और बताया कि एक्चुअल में ये मंकी है, ना कि एक डॉग है. और उसको टिकट कितना, कलेक्टर ने कितना सम फाइन किया? 3 रुपीज़ उसका फेयर. देन ग्रैंडफादर जस्ट गेट आउट हिज ओन बैग, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" एंड उसी टाइम ग्रैंडफादर ने क्या करा, एक पॉकेट में से छोटा सा टॉर्टोइज निकाला और बोला कि इस टॉर्टोइज के तुम कितने चार्ज करोगे. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with a finger, उन्होंने इसको सहलाया फिंगर से, gave another pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." और उसने फाइनली बोल दिया कि डॉग नहीं है, इसके मैं मंकी के भी कोई चार्ज नहीं लूँगा. थैंक यू. वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो.